Hello everyone, good morning. Welcome you back in the revision of number system topic. In this session, that is the last one for the revision, we are working on HOTS category of question. I will be solving each and every question properly on the board. You must understand it and that would be sufficient. You might find things difficult, or you may consider that these are difficult questions. There is no problem. These are really difficult. But what are the chances that these questions appear in examination? Very rare, very rare. Then in case if these chances are very rare, why are we learning such a difficult questions? Now that's another issue one might face. Many times students say that, okay, this is not taught in the school, then why we are doing it? This is not there in our syllabus, this is not in the textbook. Basically, let me tell you, when it comes to your 10th standard, of course, which is similar to 9th standard, the paper is not just considering your questions in the textbook. The paper will be based on the concept that present in the textbook, not based on the question that is there in the textbook. So considering that, there can be 10% or maybe sometime 5% questions can appear in the examination which are not at all in the textbook. So that is about 10th standard. But many school, what they do, they consider 9th and 10th same way. So the platform, or to generate the platform, to create the tendency of the students to face the difficulty in the 10th standard, they follow the similar pattern in 9th standard as well. And 9th standard, you will find maybe 10% of the question out of the textbook. Now when it comes to out of the textbook, that means the area is really very wide, very large. And considering that, for that 10% which might come outside the textbook, for that we have to study a lot, and that's what we are doing. Above that, HOTS category is very rare. Again, it is very rare. Out of the text, it doesn't mean that HOTS, why are we doing it? To develop our brain. Okay, to develop our brain for the level. Okay, so many of you must be trying, or many of you must be willing to go for IITs, NEET, any kind of field after this, CA, foundation, and all many things. Now considering all those levels, that what we have to study after your 10th standard or after your 12th standard, we need our brain to be developed, and brain cannot be developed in 1 year. It needs to develop from now itself. Okay, so the logic what we are developing, it is for that. Okay, so keep that in mind and then study these. Even if you are not able to do, it's okay, but understand it. Don't consider it is something out of your syllabus. Anyway, let's continue. Let's understand the first one we have already done. Karna kya hai? Cube root of 2 considered as 2 raised to 1 by 3. Then we have fourth root of 5, we have to consider it as 5 raised to 1 by 4. Then we have 6 root of 7 is considered as 7 raised to 1 by 6, and 3 raised to, of course, 12th root of this is equals to 3 raised to 1 by 12. Now make the denominator same of all the fractions as a power. So 12 is a LCM of 3, 4 and 6. So I'll make here 12. So 2 raised to 12 if I made 4 by 12. 5 raised to 3 by 12. Multiplying by 3. 7 raised to 2 by 12. And of course it is already 12, 3 raised to 1 by 12. Now what I can do is, everywhere I have to take a power as to 1 by 12. So the 4 I have to take inside. So I get 2 raised to 4 raised to 1 by 12. Here I get 5 raised to 3 raised to 1 by 12. And here I get 7 raised to 2 raised to 1 by 12. Here I get 3 raised to 1 by 12. So your answer is 16 raised to 1 by 12, 125 raised to 1 by 12. Here it is 49 raised to 1 by 12, and here it is 3 raised to 1 by 12. So here ultimately we have, this is the largest one if I want to arrange in the descending order. So we have fourth root of 5 is, ulta ho gaya symbol, sorry, is the largest. Then we have sixth root of 7, then we have cube root of 2, and then we have 12th root of 3. Clear? I hope you are clear with this. ठीक है, तो सेम वे कैन फॉलो दिस एज वेल. यहाँ पे 4 raised to 1 by 3 आएगा, 3 raised to 1 by 2 and 6 raised to 1 by 4. तो अगेन द LCM of the denominator is 12 only. Clear? Got it.
तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो 43rd क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है एंड इवन आई फाउंड दिस टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, आई हैव टू ट्राई फॉर 3-4 टाइम्स एंड देन आई गॉट दिस आंसर 2-3 years बिफोर, सो इट्स नॉट ईजी। द फर्स्ट थिंग वन शुड अंडरस्टैंड x, y, z is given equal to 1. How can I use this? Now that is the interesting thing. How can I use this to solve the or to prove that whatever is given after that? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो LHS लेते हैं। LHS is equals to raised to -1. So it is 1/1 plus x plus y raised to -1 plus 1/1 plus y plus z raised to -1 plus 1/1 plus z plus x raised to -1 and I want to make that all equal to 1. ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, देखो y raised to -1 और 1/y I can write as xz. देखो xz and if I shift y this side I get 1/y and 1/y is equals to x into z. तो 1/1 plus x plus xz. ठीक है, now what I am going to do here also I am going to bring the same denominator where in the second one 1 plus x plus xz, same denominator. Now how am I going to do that I don't know, that I will check it now. So maybe what I will do, yes, y I can write as, check करो, y I can write as 1/xz. ठीक है, तो xz has come, z is already there, तो चेक करते हैं 1 plus 1/xz plus 1/z. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी x एंड z है तो आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, 1 plus z plus 1/x. That means what I did, y I have eliminated from all the terms so that I get everything in xz, x and z. ठीक है, देखते हैं डिनोमिनेटर सेम आता है क्या, 1 plus x plus xz, already denominator is simplified, plus here I will find out LCM of the denominator, it is x into z is the LCM, so it will be xz upon xz plus 1 plus x I have to multiply by, so x upon it will be xz plus here the denominator LCM is x, so here it will be x upon x, here it will be xz upon x, here will be 1 upon x, so it is like that. And now 1/1 plus x plus xz plus this will be reciprocal and multiply, so xz upon xz plus 1 plus x plus x upon x plus xz plus 1. So what do I understand, the denominator is same, so what will be the numerator, 1 plus xz plus x upon 1 plus xz plus x and the answer is 1. That's it. तो किया क्या समझ में आ गया, सिर्फ y को रिप्लेस किया, जो भी जहाँ जहाँ y दिख रहा है वो सब कुछ हमने रिप्लेस किया यूजिंग दिस एंड आई गॉट द आंसर सिंपली. ओके, तो डू दैट एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, ट्राई करो, नहीं आया तो ठीक है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. आगे भी वैसे ही कैटेगरी का क्वेश्चन है. इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड आई विल टेल यू. यहाँ पे भी 5⁻² है या फिर यहाँ पर भी 5⁻² है. 5⁻² समहाउ आई हैव टू टेक कॉमन. ठीक है, ये हमने डिस्कस करते वक्त मतलब सॉल्व करते वक्त भी देखा था कि कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि माइनस साइन बीच में है. तो चलो देखते हैं, 1 by 1 स्टार्ट करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे LHS नहीं है, RHS नहीं है, यहाँ पे बस x फाइंड करना है, इक्वल करना है. 5⁻² -1 माइनस 5⁻² x -1 इज इक्वल टू 2500. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस 5⁻² -1. इट इज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 5⁻² x अपॉन 5⁻1 होना चाहिए. ठीक है, चेक करो दिस टू दिस, अपना लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करो एंड यू विल कम टू नो कि ये करेक्ट है. तो मैं उल्टा यूज़ कर रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडाइसिस उल्टा यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट. तो 5⁻² x अपॉन 5 माइनस, ये थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 5⁻² x -2 इज इक्वल टू 2500. तो जैसे इसको इस फॉर्मूला आया था, इसको इस फॉर्मूला आया, वैसे ही अभी इसको भी वैसे ही फॉर्मूला आएंगे. तो आई गेट 5⁻² x अपॉन 5 माइनस 5⁻² x अपॉन 5⁻2 विच कैन बी 2500. अभी देखो 5⁻² x कैन बी टेकन कॉमन, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5⁻² x कैसे भी करके कॉमन आ जाए.
सो दैट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. 1/5 माइनस 1/5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू 2500. I may solve it like 5/2x. 5 इज़ नथिंग बट माई LCM, है ना. 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. समझ में आया या नहीं आया? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 5 - 4 4/25 इज इक्वल टू 2500. यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे कुछ नहीं करना, बस सिंपल हो गया. 5/2x इंटू 4 इंटू 5⁻² इज इक्वल्स टू 2500 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 25 इंटू 100. तो 100 इज 25 इंटू 4. मतलब मैं फैक्टर्स करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं. 100 इज 25 इंटू 4. तो ज़्यादा इजीली फैक्टर्स कर रहा हूँ मैं. आप लोग सिंपली कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे. ये हो जाएगा 5/2x - 2. देखो -2 इंटू 4. 4 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. तो वाई आई एम राइटिंग इट. ठीक है ना. इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 5/2. तो ये हो जाएगा 5/2x - 2 इज इक्वल्स टू 5/4. 2 + 2 4. राइट. सो दिस इम्प्लाइज 2x - 2 इज इक्वल्स टू 4. तो 2x इज इक्वल्स टू 4 - 2 इज 2. x विल बी इक्वल टू 1. फिनिश्ड. That's it. I'm done with the answer. ठीक है, क्लियर, गॉट इट, होप यू अंडरस्टूड इट. एक्स की वैल्यू तो मिल गई मुझे. चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते. ये थोड़ा सा और वियर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अभी भी जैसे किया था वही है बस सब कुछ आपको 3 के पावर में लाना है एंड यू गेट योर आंसर डन. 3 के पावर में लाना है. और देखो ऊपर माइनस साइन है, यहाँ पर भी 3/n है, यहाँ पर भी 3/n आएगा. तो आपको 3/n कॉमन निकालना है. दैट्स इट. ठीक है, देखते ये 2 होगा मुझे लगता है. We'll start solving. Okay, चलो लेट्स वर्क. 9/n है ये. तो 9 को 3 में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट्स इट. चलो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इक्वल है, प्रूव करना है तो ये इक्वल दिया हुआ है. 3/2n + 1 इंटू ए और ये मल्टीप्लाई होगा. 2 कैंसिल. 3/n माइनस 3/3n is been divided by 3/3m into 2/3. All that equals to 1/2. 7 to 9. 7 to 9 को फैक्टर्स कर सकते हैं हम लोग. आप भी करके देखो, मुझे लगता है 3 से डिविजिबल है. 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9 3 3 1 2 3 4 5 6 -6 होगा. ठीक है, ऊपर जाएगा ना वो. 3/-6 है. एवरीथिंग इज इक्वल टू समथिंग एज 3 टू द पावर 6. तो अगर मैंने वो किया तो वो आंसर आ सकता है, आने के चांसेस है. स्टार्ट करते हैं. तो ये होगा 3/2n + 2 इंटू 3/n माइनस 3/3n. चेक कर लो. अपॉन 3/3m इंटू 2/3. 2/3 तो 8 हो सकता है. तो ठीक है, बाद में देख लेते हैं हम लोग. 3/-6. यहाँ तक समझ में आ गया. ये दोनों बेस से में इंडेक्स गेट एडेड. तो 2n + n 3. तो 3/3n + 2 माइनस 3/3n अपॉन 3/3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3/-6. इसको आई इरेज इट. ये समझ में आ गया. देखो ये n गेट्स ऐड. ये क्या हो गया? ओके, दिस n गेट्स एडेड हियर. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. तो 2n + n 3n हो जाएगा. अभी ये हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं इन सेंस, सो दैट आई कैन टेक कॉमन. 3/3n इंटू 3/2 माइनस 3/3n. देखा, 3/3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3/-6. 3/3n कॉमन निकालते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वही किया था, एक n वाले टर्म कॉमन निकालना. 3/2 इज 9 - 1 अपॉन 3/3m इंटू 8
इज इक्वल टू 3⁻⁻6। ये और ये कैंसिल हो गया, ये बेस सेम है तो 3⁻3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3⁻⁻6। पावर सेम हो गया तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -6। 3 कॉमन निकाल के डिवाइड कर देते हैं, n माइनस m इज इक्वल टू -6, n माइनस m इज इक्वल टू -2। लेकिन हमें क्या करना है, -n सबको दे देना है, या फिर दिस -n आई शिफ्ट हियर, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -n प्लस m, तो m माइनस n इज इक्वल टू 2 एंड दैट्स इट, बिन प्रूव्ड। ठीक है, आई थिंक इट्स ईजी, नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स ईजी, है ना। थोड़ा लॉज ऑफ इंडाइसिस प्रॉपरली आपको समझ में आ गया, मतलब आपने अभी तक के जो क्वेश्चन है वो ठीक से किए होंगे खुद से विदाउट एनी सपोर्ट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया, इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा हो रहा है। रिमेंबर दैट इफ़ your brain is patiently understanding all this question, that means your brain is developing. Remember, I know this is such a large question, each step you have got a different concept, and that if you are patiently understanding, then that means your brain has got increased storage capacity, let me tell you. Okay, and that's a good sign, that's a very good sign. ये तो हमने ऑलरेडी किया है, पर पता नहीं, I felt that I should take it again, that's the reason I have taken it again. तो इसका मतलब अभी इस सेशन में लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूँगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मैं पहले ये क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो ये वीडियो स्टॉप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ। ये क्या है, देखो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है लेकिन x दिया है तो ठीक से नहीं दिया है, 1/2 माइनस √3 है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा। प्लीज़ डोंट डायरेक्टली डू इट इन द एग्जामिनेशन, आपको सॉल्व करके दिखाना है, वो रैशनलाइज करके दिखाना है। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट, मैंने इसके पहले भी बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली। आप लोगों को रैशनलाइज करना है। अभी मुझे क्या क्या चाहिए, देखो x³ चाहिए, x² चाहिए, x चाहिए, x तो मुझे मिल गया, यही है x। अभी x² फाइंड करते हैं। व्हाट इज x², इसका स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 4√3 प्लस 3, 7 + 4√3, ये आ गया आपका x² भी मुझे मिल गया। अभी x³ फाइंड करना है। x³ क्या होता है, x² × x, तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 × 2 + √3 विच कैन बी इक्वल टू 7 2 14 + 7√3 + 8√3 + 12 + 14 is 26, 8 + 7 is 15, ये आ गया मेरा x³। ठीक है, अभी उसमें पुट करते हैं। therefore x³ - 2x² - 7x + 5 is equal to x³ 26 + 15√3 - 2 × x² which is 7 + 4√3 - 7 × x which is 2 + √3 + 5. This will be 26 + 15√3 - 14 - 8√3 - 14 yes plus - 7√3 + 5. तो ये √3 और ये √3 100% गेटिंग कैंसिल। देख लो, समझने की कोशिश करो, गेटिंग कैंसिल। ठीक है, तो लिख नहीं रहा हूँ मैं। 14 28, 26 - 28 is -2, आंसर इज 3, 5 - 2, आंसर इज 3। देखो, लगने के लिए क्वेश्चन कितना बड़ा लगता है, अरे बाप रे, x³ कब निकालेंगे, ये कब निकालेंगे, ये कब करेंगे। लेकिन जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, द वे वी हैव प्रैक्टिस्ड, दीज क्वेश्चन शुड नॉट कंसिडर टू बी डिफ़िकल्ट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें बहुत ईजी लगने लगती है उसके बाद। जब आप लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अरे ये बहुत सिंपल है। अगर हमने करते वक्त, जब वी वर स्टडिंग द सिलेबस दैट टाइम, अगर हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक किया होता, राइट नाउ यू मस्ट हैव कंसिडर दिस, अरे बाप रे क्या है ये कब करेंगे, ये कैसे करेंगे। दैट्स द रीज़न व्हेन वी प्रैक्टिस थरोली, प्रॉपरली, ओके, सो दैट थिंग्स शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। आपको अगर आप मतलब
कंसिडर करते हो कि ईजी है तो छोड़ दो, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन कंटिन्यू विद द पॉलिनॉमियल टॉपिक. आई एम सेंडिंग द पॉलिनॉमियल शीट ऑल्सो टुडे, तो यू कैन कंटिन्यू विद द पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल के लिए आपको रिवाइज करना है एंड देन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को. ठीक है, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है. चलो ये पहले कंप्लीट करते हैं. रूट 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है. रूट 20 इज़ यू नो हाउ टू डू दैट. 24 रूट 5 आता है ये, है ना. 4 रूट 5 सॉरी 4 इंटू 5 मतलब 2 रूट 5. ये कैसे करना है पता है आपको, कन्वर्टिंग इनटू मिक्सड. ये भी नहीं आ रहा है तो रिवाइज करो. इसके वीडियोस देखो, पिछले कुछ सेशंस में इसके वीडियोस होंगे, देखो. तो ये हो जाएगा 4 मतलब 2 रूट 10. रूट 5 कुछ नहीं हो सकता. रूट 80 इज़ 4 रूट 5. 80 if you want I'll show you. 2 4s are 0, 2 2s are 0, 2 10s are, 2 5s are, 5 1s are. That's it. ये देखो, ये 2 वाला बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया. 2 to the 4 रूट 5. हाँ ठीक है. अभी 15 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 5. साइन प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो. 4 रूट 5 नहीं, 2 रूट 10 माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5 विच कैन बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 वाले टर्म्स एक साथ, रूट 10 वाले टर्म्स एक साथ. 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 5. चेक कर लो. यस 3 रूट 5 राइट. 15 3 कॉमन, रूट 10 माइनस रूट 5 कॉमन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हर जगह पे, राइट. तो 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5. अब आप बोलोगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, है ना. ये वैल्यू बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपको पता है ऑलरेडी. ओके, ये गलती तो मेरे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करेंगे. रूट 10 प्लस रूट 5, ये ऊपर आएगा रूट 10 प्लस रूट 5. ओके दैट्स इट. मतलब रैशनलाइजेशन किया. अभी 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, ये भी गलती आप नहीं करेंगे, है ना. 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. रूट होता तो करते हैं, नंबर है तो नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसिल होने के चांसेस है. तो नीचे 10 माइनस 5 आ जाएगा, तो 5 ये देखो हो गया कैंसिल. तो रूट 10 प्लस रूट 5 मतलब वैल्यू पुट करो. 3.2 प्लस 2.2 कितना हो गया 5.4. दैट्स इट, आंसर रेडी. देखो कितना ईजी है ना, सिंपल है. चलो अब यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है. HODs आप कंप्लीट करो या ना करो, ओके जैसे भी हो, आप आपको जैसे अच्छा लगे यू कैन गो फॉर इट. HODs नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ट्राई तो करो, आपने वीडियो तो देखा, एटलीस्ट दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम. अभी आपको करना क्या है, नंबर सिस्टम को पुट आउट कंप्लीट कर देना है, मतलब फुल स्टॉप दे देना है. नंबर सिस्टम आज आर्ट एनी कॉस्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. जिनका ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी जब मैंने पहले दिया था तब किया था, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बेसिकली, नॉट एक्सपेक्टेड. तो अनएक्सपेक्टेडली बच्चों ने किया है. मुझे कॉल आए, मैसेजेस आए, सर हमने ऑलरेडी किया है, क्या करें. तो इट्स वेरी गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी सो सिंसियर दैट एज सुन एज आई टेल यू यू विल कंप्लीट इट. आई एम रियली वेरी हैप्पी. तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, टुडे आई एम गिविंग यू पॉलिनॉमियल टॉपिक, उसका फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं. बहुत सिंपल सिंपल है, 1 मार्क के क्वेश्चंस है, ठीक है. और बाकी बच्चे नंबर सिस्टम का कंप्लीट करो और फिर पॉलिनॉमियल कंप्लीट करो. लेकिन आपको भी सब कुछ कंप्लीट करना ही है आज, ठीक है. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो.